Namaskar. A very warm welcome to all our distinguished guests at the 5th Atal Bihari Vajpayee Memorial Lecture. We will start the proceedings today by showing a short film on Atalji, who indeed has been one of the most iconic and loved leaders of independent India. Probably one of the greatest orators that India has seen, a product of parliamentary democracy, a man who always measured his words, a man who had the capacity to place national interest higher than his own party interest, an excellent poet who used the facility of language that he possessed to pierce and penetrate every point that he wanted to make. His era spread through generations. What do I regard as his greatest achievement? Indian democracy, because of two political parties as national parties, became a viable parliamentary democracy. As a statesman and a political stalwart, he dominated the national space for a very long period of time. As a Prime Minister, he kept the nation first. As an opposition leader, he was sharp but matured in his critique. As a Democrat, he was one of the few leaders who thought of every angle before taking a decision. He fast-tracked development in various sectors, ranging from air connectivity, rail connectivity, port connectivity, even political connectivity also. And he was able to provide a able leadership and also a stable government. Atalji was much more than a politician. He was essentially a sensitive and compassionate soul. So he naturally took to poetry to give expression to his anguish and pain caused by the poverty, by the backwardness and degradation in which his own people were living. टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। May I now invite the former President of India, Shri Ram Nath Kovind ji, on the stage. May I also request Shri Chandar Vadhva ji to escort Shri Ram Nath Kovind ji. I now request Shri Jayant Sinha ji, Honorable Member of Parliament and the Chair of the session, to kindly come on the dais. May I request Major General Dhruv Katoch, Director, India Foundation, to escort Shri Jayant Sinha ji. And now may I request Admiral Shekhar Sinha ji to kindly come up on the dais. He's already there.
May I now please request everyone to rise for the national anthem of India. May I now request Vice Admiral Shekhar Sinha, Member Board of Trustees, India Foundation, to deliver the welcome address, please. Namaskar. On behalf of India Foundation, I am privileged to welcome Honorable Shri Ram Nath Kovind, former President of India, to deliver the 5th Atal Bihari Vajpayee Memorial Lecture on the theme of social empowerment through good governance. Atal Bihari Vajpayee Memorial Lecture was instituted by India Foundation in 2018 to honor the memory of late Shri Atal Bihari Vajpayee, Bharat Ratna, former Prime Minister of India's legacy of nationalism, integrity in public life, good governance, and approach towards politics. Over the years, the lectures have been delivered by very eminent personalities of our country. When we started in 2018, as you saw on the movie short clip, Shri Arun Jaitley, the then Finance Minister of India, delivered the first memorial lecture during the 5th India Ideas Conclave in Delhi. And the theme was Indian Democracy, Maturity and Challenges. In 2019, we had the second lecture delivered by Shri Pranab Mukherjee, the former President of India. And theme of his talk was, Has Parliamentary Democracy Succeeded in India? The Challenges Ahead. In 2020, Shri M. Venkaiah Naidu, the then Vice President of India, delivered the third memorial lecture on the theme Building Democratic Consensus, the Vajpayee Way. It was conducted in Hyderabad in Telangana. The last one in 2021, Shri Arif Mohammad Khan, the Governor of Kerala, delivered the fourth lecture on Indian polity at 75, religion, culture and secularism debate, and it was done in Bangalore. And today, ladies and gentlemen, we are honored to have Shri Ram Nath Kovind ji, our former President, to deliver the 5th Atal Bihari Vajpayee lecture on the theme Social Empowerment through Good Governance. Thank you. I now request Shri Jayant Sinha ji to felicitate the former President of India, Shri Ram Nath Kovind ji, with a little memento on behalf of India Foundation. May I request Shri Jayant Sinha ji, Honorable Member of Parliament and Member Board of Governors, India Foundation, for his remarks, please. प्रणाम आप सबको झारखंडी जोहार. Your Excellency, respected former President of India,
Shri Ramnath Kovind ji, Vice Admiral Shri Shekhar Sinha ji, Major General Dhruv Katoj ji, Shri Ram Madhav ji, distinguished governing council members, trustees and directors of the India Foundation, members of the media, ladies and gentlemen. I would like to start by thanking respected former President Shri Ramnath Kovind ji for gracing this occasion and agreeing to give the 5th Atal Bihari Vajpayee Memorial Lecture. I can think of no better person to speak on social empowerment through good governance than His Excellency Shri Kovind ji. As President of the Indian Republic, Shri Kovind ji exemplified good governance. India has gained immeasurably from his service to the nation. A heartfelt thank you also to the India Foundation for organizing and hosting this event. The Vajpayee Memorial Lecture is now a flagship program which is eagerly anticipated and very well attended. India is the mother of democracy, and we are all her children. Each one of us is grateful for the priceless benefits of democracy and strives to uphold democratic values. But Shraddhe Atal Bihari Vajpayee's contribution to India's democracy and thus to good governance can scarcely be matched. Entering Parliament in 1957, in Pandit Nehru's pomp, he excelled as a parliamentarian across his 10 terms in the Lok Sabha and his 2 terms in the Rajya Sabha. For us, as parliamentarians, it is an honor and privilege to be in the same hallowed chambers as Shraddhe Atalji. We have all been blessed to have heard his speeches in Parliament and outside. For me, each time I met him personally, it was an extraordinary honor and a deep recognition that I was in the company of an immortal son of Bharat Mata. As Shri Arun Jaitley ji just said in the video we saw, Shraddhe Atalji's greatest contribution to Indian democracy was to build up the two-party system in this country. Transforming India from a single-party state to a robust, well-functioning democracy was Shraddhe Atalji's singular contribution to our nation's governance. Countless future generations will remember and cherish his invaluable legacy. Perhaps no finer lines have been spoken on Indian democracy than the lines spoken by Shraddhe Atalji in the Lok Sabha on May 27th, 1996. सत्ता का तो खेल चलेगा, सत्ता का तो खेल चलेगा, सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए. Spoken 26 years ago, these lines will forever echo in history. We all still get goosebumps listening to these words. Of course, Atalji was much more than just a great parliamentarian and orator. As Prime Minister of India from 1998 to 2004, he inspired all of us to follow the principles of good governance and deliver results for the last person in the line. He was dedicated to Mahatma Gandhiji's talisman, the face of the poorest and the weakest. His leadership was focused on ensuring that government programs and policies were designed with the poorest and weakest individual always in mind. One incident comes to mind that symbolizes Shraddhe Atalji's administrative acumen and focus on delivery. When I was at McKinsey back in 2001, we presented an economic roadmap for India to Shraddhe Atalji. The presentation was full of clever policies, innovative government schemes, and detailed funding programs. Atalji listened attentively and carefully. After the long presentation, he smiled mischievously and said with his characteristic wit, "ये तो ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे?" Shraddhe Atalji's government showed kaise hoga on many transformational programs, ranging from India's strategic deterrence to the new telecom policy to the National Highway Program. But I personally feel most inspired by the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. There are 2 reasons for that. First, one of the first villages to get a PMGSY road was in Bishnugarh in my own Hazaribagh constituency.
And second, over the years, I have seen the incredible impact that the PMGSY network of roads has had in remote rural areas. This is truly, truly social empowerment through good governance. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's government has built on this approach and accomplished miracles. Today, those same remote villages in Bishnugarh and Katkamsandi, in Keredari and Barlanga have not just all-weather roads, but also pakka houses, electricity, water, toilets, gas stoves, bank accounts, mobile phones, health insurance, and assured food security. The poorest of the poor now have faith, Vishwas, that Modi ji ki sarkar cares for them and they have a better future to look forward to. Honorable Prime Minister Modi ji's good governance has led to extraordinary social empowerment. Shraddheya Atal ji was an exceptional parliamentarian, a remarkable Prime Minister, and a global statesman. But most of all, he was a sensitive and passionate poet. His stirring poems and speeches will be remembered forever. Who can forget the lines of the poem that he composed on the spot at the Ram Leela Maidan in January 1977? Ladies and gentlemen, it was a fraught moment. The emergency had just been lifted, elections had been announced, and the opposition was attempting to start their campaign. Mrs. Gandhi's government and her popularity seemed unassailable. When Atalji got up to speak, it was 9:30 p.m. It was dark and dreary, that chilly January night all those many years ago. It was now very late, but still no one had left. The lax, strong crowd was waiting for Atalji. He rose to be greeted with deafening applause. And then came these lines, spoken by a poet in full flow, in Dhara Prabhav. बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में सांस तो ले लें, खुली हवा में सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आज़ादी भले कौन जाने, कब तक रहेगी आज़ादी भले कौन जाने. The crowd went wild. Indira Gandhi ji's fate was sealed. Late on a winter's night, in the cold, drizzling rain, Atalji changed the course of Indian history with just a few words. But what piercing words they were. What piercing words they were. Deep in his poet's heart, Shraddheya Atalji knew that social empowerment and good governance only happens when we have the real freedom of a true democracy. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. भारत माता की जय. May I now have the proud privilege to request the former President of India, Shri Ram Nath Kovind ji, to deliver the 5th Atal Bihari Vajpayee Memorial Lecture. इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित लोकप्रिय सांसद और पूर्व मंत्री श्री जयंत सिन्हा जी, इंडिया फाउंडेशन के सदस्य व न्यासी वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, अटल जी के बारे में बोलना सचमुच में जैसे सूरज को एक दीपक दिखाने जैसी स्थिति. किसी का साहस नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं इधर उधर से जोड़ करके कुछ अपने संस्मरणों को
मैंने एक प्रयास किया है कि उनके बारे में कुछ थोड़ा सा कहूँ, थोड़ा सा। अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन करने के लिए मैं इंडिया फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों की सराहना करता हूँ। सराहना इसलिए करता हूँ कि अटल जी की जो लेगेसी थे, उस लेगेसी को कंटिन्यू करने का एक प्रयास है। उस महान विभूति का स्मरण करने के लिए यहाँ उपस्थित होना आप सबकी अटल जी के प्रति अगाध श्रद्धा को दर्शाता है। इसके लिए मैं आप सबको भी साधुवाद देता हूँ। अटल जी से जुड़े विषय पर संबोधन का मुझे अवसर देने के लिए मैं इंडिया फाउंडेशन को भी धन्यवाद देता हूँ। देवी और सज्जनों, आयोजकों ने आज के व्याख्यान माला के लिए न केवल एक बहुत अच्छा बल्कि एक सार्थक विषय चुना है। सुशासन के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण, वाजपेयी जी की शैली। यह विषय अत्यंत प्रासंगिक है और भविष्य में भी बना रहेगा। सुशासन के जरिए समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना वाजपेयी जी का जीवन दर्शन था और जन सेवा के प्रति उनके आजीवन समर्पण का केंद्रीय बिंदु था। वो प्रायः कहा करते थे कि जाके पाँव न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई। वे अंत्योदय के दर्शन को कार्य रूप देने में विश्वास रखते थे। जैसा कि जयंत सिन्हा जी ने अभी उसका एक वाक्य में उनकी जो प्रतिक्रिया थी उसका उल्लेख किया। समाज के गरीब व वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति वो सदैव चिंतित और सक्रिय रहते थे। हम सब लोग जानते हैं कि 19 दिसंबर से पूरे देश में सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अटल जी की जन्मतिथि 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सभी देशवासी सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में संसद के सेंट्रल हॉल में अटल जी के चित्र का अनावरण करने का ऐतिहासिक अवसर मुझे मिला था। एक जनसेवक, राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने जो देश को और पूरी मानवता को बहुआयामी योगदान दिया है, उसका वर्णन सचमुच में एक संबोधन में समेटा नहीं जा सकता। सुशासन उनमें से एक प्रमुख आयाम है। लेकिन पहले मैं अटल जी की शैली के बारे में अपने कुछ विचार आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। देवी और सज्जनों, अटल जी की शैली उनके विराट व्यक्तित्व, गहन संवेदनशीलता, असीम देशभक्ति, पूर्ण पारदर्शिता और नैतिकतापूर्ण राजनीति पर आधारित थी। मैं कहा करता हूँ कि अटल जी अपने आप में सार्वजनिक जीवन की एक पाठशाला हुआ करते थे। मेरे निजी जीवन पर उनका गहरा प्रभाव रहा है। सच तो यह है कि उनके विलक्षण व्यक्तित्व और कार्यशैली ने ही मुझे जनसेवा के प्रति आकर्षित किया। मेरे विचार में अटल जी की शैली के निर्माण में दो विभूतियों का निर्णायक योगदान रहा है। वे दो महापुरुष थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे असाधारण गुरु और अटल जी जैसे विलक्षण शिष्य का एक साथ होना भारतीय राजनीति को ईश्वर का वरदान कहा जा सकता है।
जनसंघ की स्थापना से भी पहले, जब अटल जी केवल 23 वर्ष के थे, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उन्हें राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका के संपादक की जिम्मेदारी दी थी। हम सब जानते हैं कि राष्ट्र धर्म ही अटल जी का जीवन धर्म बना रहा। राष्ट्रहित को उन्होंने दलगत राजनीति से सदैव ऊपर रखा। सन 1971 के युद्ध के दौरान उन्होंने तत्कालीन सरकार के प्रयासों को पूर्ण समर्थन प्रदान किया था। उनकी अतुलनीय राष्ट्र निष्ठा के कारण ही वर्ष 1994 में तत्कालीन भारत सरकार ने कश्मीर के विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए अटल जी का सहयोग लिया था। अटल जी ने अपने अविस्मरणीय संबोधन से विश्व समुदाय को सचमुच में प्रभावित किया था। भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद अटल जी को पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निजी एवं राजनैतिक सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। तब उनकी आयु लगभग 27 वर्ष की थी। युवा अटल जी पर भारतीय राजनीति के एक महानायक के साथ निकटता से कार्य करने का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय संस्कृति और अस्मिता तथा देश की अखंडता के विषय में अटल जी के सुस्पष्ट विचारों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिध्वनि भी सुनाई देती थी। देवियों और सज्जनों, समानता और समरसता के प्रति वाजपेयी जी तन मन धन से समर्पित थे। बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। स्वाधीनता के 4 दशकों बाद भी बाबा साहब की स्मृति को जब समुचित सम्मान नहीं प्रदान किया गया, ये बात उनको हमेशा कचोटती रहती थी। इसलिए भाजपा द्वारा समर्थित जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो उन्हीं के कार्यकाल में वाजपेयी जी के आग्रह पर मार्च 1990 में बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया। उसी वर्ष अप्रैल में बाबा साहब के पोर्ट्रेट को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में स्थान मिला। वाजपेयी जी ने सचमुच में एक बार मेरा भी, जब उनसे मैं 91 में आया, जब पॉलिटिकल फील्ड में जब मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला था, पहला मौका 91 में, तो कहीं न कहीं उनसे जब भेंट होती थी, ये बात उनको कचोटती थी और एक ही बात कहते थे कि जिस डॉक्टर अंबेडकर ने इसी संसद भवन के कक्ष में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सैकड़ों सभाएं हुई, उन सभाओं की अध्यक्षता की, लेकिन आज तक 1990 तक देश को आज़ादी मिले हुए कितने वर्ष बीत गए, लेकिन उस बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र सभी नेताओं के लगे, लेकिन बाबा साहब का सबसे पहले लगना चाहिए था, लेकिन वो आज तक नहीं लगा। ये बात उनको कचोटती रहती थी और शायद सभी देशवासियों को प्रसन्नता हुई कि 1990 मार्च में जब अटल जी के आग्रह पर वो स्थान उनको मिला। वाजपेयी जी के आग्रह पर ही बाबा साहब की स्मृति में दिल्ली में अलीपुर रोड पर स्थित उनके निवास स्थान में एक संग्रहालय का निर्माण शुरू भी करवाया गया। दुर्भाग्य से वह कार्य अटल जी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद बंद कर दिया गया। वर्तमान सरकार ने वह कार्य फिर से शुरू किया और वर्ष 2018 में 13 अप्रैल को परिनिर्वाण भूमि के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर आम्बेडकर नेशनल मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस प्रकार अटल जी की सोच को संपूर्णता प्रदान की गई। वाजपेयी जी के इन प्रयासों में बाबा साहब के प्रति उनकी श्रद्धा
वंचित वर्गों के प्रति उनकी संवेदना तथा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उनकी प्रतिबद्धता को समाज के जागरूक लोगों ने समझा और सराहा भी। डॉक्टर आम्बेडकर तथा उनकी अध्यक्षता में बनी भारतीय संविधान के प्रति अटल जी के मन में कितनी श्रद्धा थी, इसका उल्लेख उन्होंने अपने एक संबोधन में किया था। वो प्रसंग मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। वर्ष 2001 में अटल जी प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाल किले के मैदान पर एक दलित संगम रैली का आयोजन किया गया। अटल जी प्रधानमंत्री थे, कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और संयोग से उन दिनों मैं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस रैली के प्रभारी थे। देश में बहुत से लोग भाजपा की छवि को दलित विरोधी पार्टी के रूप में चित्रित करने का सदैव प्रयास करते रहते थे। मनुवादी पार्टी के रूप में बदनाम करने का भी प्रयास करते थे। लाल किले के मैदान से उस रैली को संबोधित करते हुए अटल जी ने उद्घोष किया था कि आज मैं सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार दलितों, पिछड़ों और गरीबों की भलाई के लिए बनी है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार मनुस्मृति के आधार पर नहीं बल्कि भीम स्मृति के आधार पर काम करेगी। भीम स्मृति अर्थात भारत का संविधान। उन्होंने यह भी कहा कि हम मनुवादी नहीं हैं बल्कि भीमवादी हैं अर्थात आम्बेडकरवादी हैं। लाल किले के मैदान से किया गया अटल जी का वह उद्घोष ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसने समाज के एक वर्ग के मानस पटल पर भाजपा के प्रति जो विकृत भाव था उसे दूर करने में सकारात्मक भूमिका निभाई थी। देवी और सज्जनों, अटल जी के लिए सामान्य व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ करता था। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए मैं अटल जी के शब्दों को दोहराना चाहूँगा। जैसा कि सर्वविदित है कि विदेश मंत्री के रूप में वर्ष 1977 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। वह भाषण इसलिए भी याद किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को पहली बार हिंदी में संबोधित किया गया था। उस भाषण में अटल जी ने कहा था, भारतवर्ष में सदा से हमारा इस अवधारणा में विश्वास रहा है कि पूरा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा। आम लोगों की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अनकोट। देवी और सज्जनों, जन सामान्य की प्रतिष्ठा और प्रगति को सर्वाधिक महत्व देना सुशासन का आधार स्तंभ होता है। अटल जी ने गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाने वाले बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई। इस अभियान के द्वारा लगभग 20 करोड़ बच्चों तक शिक्षा सुविधाएं पहुंचाई जा सकी। साक्षरता को उन्होंने जन आंदोलन बनाने का आह्वान दिया। नारी शिक्षा उनकी विशेष प्राथमिकता थी। भारत के स्वाधीनता संग्राम की एक महान महिला विभूति एनी बेसेंट को वे भविष्य दृष्टा मानते थे। ऋषियों की परंपरा में उनकी गणना करते थे। अपने एक भाषण में अटल जी ने नारी शिक्षा पर एनी बेसेंट के इस वक्तव्य को उद्धृत किया था। कोट, भारत तब तक अपनी महानता को फिर से प्राप्त नहीं कर सकता
जब तक कि यहाँ के महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, जब तक वो अपना जीवन पूरी तरह जी पाने में सक्षम नहीं होती। ऐसी भारतीय महिलाओं के हाथों में ही भारत का पुनरुद्धार संभव है। अटल जी कहा करते थे कि नारी को दया नहीं, अधिकार चाहिए। सॉरी। अटल जी सदैव कहा करते थे कि सुशासन के लिए भौगोलिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से जो वर्ग या जातियां पिछड़ गई हों, क्षेत्र पिछड़ गए हों, उनको प्राथमिकता देना सुशासन के लिए आवश्यक है। इसी आधार पर अटल जी के कार्यकाल में ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के समग्र विकास के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का अलग से गठन किया गया। उनके कार्यकाल में ही अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया। यह भी उल्लेखनीय है कि उनके ही कार्यकाल में एक संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की को भी अलग अलग स्थापना की गई। जो कार्य पहले एक ही आयोग द्वारा दोनों समुदायों के लिए किया जाता था, उसे दो आयोगों द्वारा और गहराई के साथ करने की व्यवस्था की गई। अटल जी कहते थे कि दोनों समुदायों अर्थात अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की समस्याएं अलग अलग होती हैं, इसलिए दोनों की प्राथमिकताओं को अलग अलग आयोगों द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए। कम लोगों को याद होगा कि उन्होंने उड़ीसा के सर्वाधिक गरीब इलाकों के लिए 7 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया था। उन्होंने विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना शुरू की। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार और आमदनी के अवसरों में वृद्धि करके जन सामान्य के जीवन स्तर में सुधार के लक्ष्य की तरफ उन्होंने देश को निरंतर आगे बढ़ाया। सामाजिक सशक्तिकरण के उनके कार्यों की सूची बहुत लंबी है। संक्षेप में, हर क्षेत्र के और समाज के हर वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिए अटल जी ने अपनी अद्भुत दूरदर्शिता व संवेदनशीलता के साथ अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए और उन्हें कार्य रूप प्रदान किया। देवियों और सज्जनों, मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अटल जी के नेतृत्व में ही सन 1999 में एक नई दूरसंचार नीति लागू की गई। वर्ष 1997 तक हमारे देश में इनकमिंग कॉल की दर लगभग 17 रुपये प्रति मिनट हुआ करती थी। इस कॉल टैरिफ की दर कम होते होते वर्ष 2000 तक केवल 40 पैसे प्रति मिनट हो गई। इससे जन सामान्य के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया। वर्ष 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। यह भी एक युगांतकारी परिवर्तन था। डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाने से पारदर्शिता बढ़ती है। पारदर्शिता सुशासन का अनिवार्य अंग होता है। पारदर्शिता अटल जी के निजी जीवन, राजनीति और कार्यशैली को भी परिभाषित करती थी। अटल जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में स्वाधीनता के बाद तब तक की सबसे बड़ी सड़क परियोजना को कार्य रूप प्रदान किया। इसकी पूरक योजना के रूप में उन्होंने रूरल रोड कनेक्टिविटी की योजना भी कार्यान्वित कराई। वर्ष 2000 में अटल जी के जन्म दिवस के दिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई, जिसका 100% खर्च केंद्र सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। ये सड़कें लाखों वंचित देशवासियों के लिए प्रगति के अवसर का मार्ग सिद्ध हुई हैं।
कोंकण रेलवे की शुरुआत भी उनके द्वारा आरंभ की गई परिवर्तनकारी योजनाओं में से एक है। मैंने उनके द्वारा सुशासन और देश के नवनिर्माण के लिए जो योजनाएं चलाई गई उनका मैंने कुछ संक्षेप में आप सबके सामने उल्लेख किया। देवी और सज्जनों, जन सामान्य के प्रति संवेदनशीलता तथा विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दीप जलाए रखने की अटल जी की प्रेरणा सभी देशवासियों के लिए संजीवनी का काम करती थी, करती है और सदैव करती रहेगी। मैं अटल जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा था, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और ये कविता उन्होंने वर्ष 1998 में अपने जन्म दिवस के अवसर पर बच्चों को सुनाई थी। आज़ादी के और सचमुच में जब वो कहते थे कि भरी दोपहरी में अंधियारा, लोगों को सरप्राइज़ होता था कि क्या बात कर रहे हैं, भरी दोपहरी में कहीं अंधियारा होता है। लेकिन उनका संकेत था कि देश 5 दशक बीत चुके हैं, 5 दशक, 10 दशक पर 100 साल हो जाएंगे आज़ादी को मिले हुए, लेकिन अभी तक भरी दोपहरी अर्थात आधा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी अंधियारा है। उस अंधियारे की ओर उन्होंने संकेत दिया था। विकास, आज़ादी के बाद के 5 दशक बीत चुके थे, लेकिन विकास का उजाला देश के अधिकांश क्षेत्रों और वर्गों तक नहीं पहुंच पाया। ये उनकी पीड़ा थी। स्वाधीनता के तुरंत बाद भी कवि हृदय अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उसमें कहते थे कि 15 अगस्त का दिन है कहता, आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन है कहता, आज़ादी अभी अधूरी है। समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग में जन जन के जीवन में उल्लास और प्रकाश प्रसारित करने की भावना कवि राजनेता अटल जी की कविताओं में भी दिखाई देती है, उनकी राजनीति में भी और प्रधानमंत्री के रूप में भी, उनके निर्णयों में भी। देवी और सज्जनों, सुशासन की अटल जी की शैली की बात के प्रसंग में उनके अदम्य साहस, अटूट संकल्प शक्ति, निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता और आवश्यकता पड़ने पर दो टूक और खरी खरी कह देने की उनकी विशेषताओं का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। अटल जी में एक भावुक कवि का कोमल हृदय तो था ही, उनमें वीरता और अदम्य साहस का इस्पात भी था। अटल जी की प्रेरक पंक्तियों को याद करके हमेशा रोमांच होता है, स्फूर्ति का संचार होता है, राष्ट्र प्रेम का आवेग जगता है। उन्होंने कहा था, आँखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। ये उन्होंने एक कंडीशन, शर्त रखी थी हर भारतीय के लिए। आँखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिस की हिम्मत हो। ये जो चैलेंज उन्होंने दिया था, ये चैलेंज उन्होंने दिया था विश्व की महाशक्तियों को, और उसका हमने परिणाम भी देखा। हमने देखा कि वो राष्ट्रभक्ति के प्रवाह में अटल जी ने वैश्विक शक्तियों को जो चुनौती देते हुए वर्ष 1998 की 11 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ऑपरेशन शक्ति को अंजाम दिया और भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। उसके बाद के अंतर्राष्ट्रीय दबावों का हम सब लोग जानते हैं कितना दबाव पड़े थे।
उसके बाद के अंतर्राष्ट्रीय दबावों का जिस दृढ़ता के साथ अटल जी ने सामना किया, वह भारतीय आत्मगौरव की गाथा का एक स्वर्णिम अध्याय है। अटल जी को यह स्पष्ट था कि यदि भारत को एक सुदृढ़ आर्थिक शक्ति बनना है तो अपनी रक्षा हेतु देश को सामरिक शक्ति भी बढ़ानी होगी। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति विश्व समुदाय में और मजबूत हुई, जिसके बहुआयामी सुपरिणाम सामने भी आए। देवी और सज्जनों, कारगिल में शत्रुओं की घुसपैठ का षड्यंत्र अटल जी के राष्ट्रभक्ति के इसी ज्वार में डूब गया। जब अटल जी ने ऑपरेशन विजय के तहत जवाबी हमले का आदेश दिया, उस समय का उनका वक्तव्य हमारी सेनाओं और सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत सिद्ध हुआ। अटल जी ने अपने संबोधन में कहा था, कोट, हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे, अनकोट। और उसके पश्चात हमारे देश ने कारगिल में विजय पाई। 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और अटल जी के अद्भुत नेतृत्व को याद किया जाता है। इस संबंध में एक प्रसंग जिससे मैं भी जुड़ा हूँ, मैं आप सबके साथ साझा भी करना चाहूँगा। मुझे वर्ष 2021 में कारगिल जाकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके पहले लगातार 2 वर्ष अर्थात 2019, 2020 लगातार मैंने 2 बार कारगिल जाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं पहुंच पाया। मौसम संबंधी कारणों से दोनों बार मुझे श्रीनगर से वापस दिल्ली आना पड़ा। दोनों बार संयोग से हमारे तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष और प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने वाले जनरल बिपिन रावत साहब भी हमारे साथ थे। मैंने उनसे अपने मन की व्यथा व्यक्त की और कहा कि जनरल साहब, आप सेना प्रमुख हैं और मैं राष्ट्रपति के रूप में आपकी सेना का सर्वोच्च कमांडर हूं। हम लोग चाहते हुए भी अपने वीर जवानों को कारगिल जाकर श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहे हैं। रावत साहब ने उनको बहुत, मैं ये तो नहीं कहूँगा शर्म महसूस हुई, लेकिन बट ही वॉज फीलिंग ए लिटिल बिट गिल्टी। और उन्होंने मुझे वचन दिया कि राष्ट्रपति जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं अगले वर्ष आपको जरूर ले चलूँगा। और अगले वर्ष हुए हमारे संकल्प को उन्होंने सिद्ध किया। इस बार हम लोग श्रीनगर की बजाय लेह होकर के गए। अंततः 2021 में जनरल बिपिन रावत के साथ ही मुझे वहाँ अक्टूबर माह में जाने और वीर जवानों की स्मृति में पुष्पांजलि करने का सौभाग्य मिला। मेरे लिए कारगिल जाने की गहन अनुभूति के साथ साथ आज जनरल बिपिन रावत और श्रद्धेय अटल जी दोनों की ही स्मृतियाँ जुड़ी हैं और सदैव जुड़ी रहेंगी। देवियों और सज्जनों, अटल जी की नैतिकता और पारदर्शिता के कारण उनके राजनीतिक विरोधी और यहाँ तक कि शत्रुता के माहौल में विदेशी नेता भी उनके प्रति सदैव आदर भाव रखते थे। उन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता था। अटल जी की हृदय की विशालता, सबको सम्मान देने की उनकी भावना, सुशासन और संगठन के सामंजस्य से युक्त उनकी कार्यशैली के अनेक उदाहरण मेरे मानस पटल पर अंकित हैं।
उनका सुशासन केवल सरकारी कामकाज तक ही सीमित नहीं था। कभी कभी हम लोग मानते हैं कि गुड गवर्नेंस मीन्स गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, लेकिन उनका सुशासन केवल सरकारी कामकाज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पार्टी के संगठन में भी सुशासन की पद्धति को अपनाते थे। बहुत बड़ी बात है। यद्यपि आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मैं एक संस्मरण उल्लेख करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान एक कार्यकर्ता के लिए, एक पद के लिए अटल जी को पत्र लिखा और संयोगवश पद एक ही था। उसी पद के लिए तत्कालीन हमारे स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी कुछ असमंजस में थे और उन्होंने जो सुशासन की पद्धति अपनाई उसका मैं बयान कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे पास संदेश भेजा। रामनाथ जी, मैं उनसे मिला संसद भवन के प्रधानमंत्री कक्ष में। उन्होंने कहा कि रामनाथ जी, आप दोनों ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा, सर मेरे से कोई गलती हुई? नहीं, मैं आपकी गलती के लिए नहीं बुलाया। मैं ये कह रहा हूँ, आप भी हमारे लिए पार्टी के एक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुशाभाऊ जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पद एक ही है, दोनों की संस्तुतियाँ ठीक हैं, मैं इसमें क्या करूं? मैंने कहा कि सर, जो कुशाभाऊ ठाकरे जी ने नाम संस्तुत किया है उसी को, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे भी हैं, आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नाम को स्वीकारना चाहिए। और उन्होंने इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आपने मुझे धर्म संकट से उबार लिया। ये उनके शब्द थे। और उसका मैंने इस प्रकार से देखा कि आखिर वो, इसको मैंने अन्यथा लिया, अन्यथा इस दृष्टि से कि यदि घटना नहीं घटती तो इसका क्या प्रभाव होता। प्रभाव ये होता कि मेरे मन में कुंठा जागती, सदैव कुंठा बनी रहती, और ये होती कि वो चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी बात आपने स्वीकार कर ली, जबकि जिस पद के लिए मैंने नाम प्रस्तावित किया था संभवतः वो नाम बेटर था, लेकिन इसके बावजूद, लेकिन उन्होंने एक ऐसा समाधान निकाला कि शायद वो मेरे जिंदगी के लिए एक स्मृति बन गई, और मैं मानता हूँ कि शायद मेरे मन में उनके प्रति कभी कुछ नहीं। ये सुशासन को मैंने अंत में जब उन्होंने कहा कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, तो मैंने अटल जी से निवेदन किया, कुशाभाऊ ठाकरे जी हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी संस्कृति मेरे लिए आदेश है, आदेश के समान है, उनकी संस्कृति को ही मानना चाहिए। और उन्होंने कहा बहुत अच्छा रामनाथ जी, आपने मुझे धर्म संकट से बचा लिया। देवी और सज्जनों, अटल जी, मुझे लगता है वो एक महान आत्मा में ही सत्ता और विनम्रता, ये दो चीज़ें बहुत विलक्षण होती हैं, सत्ता के साथ विनम्रता। लेकिन उनमें एक महान आत्मा में सत्ता और विनम्रता, कौशल और संवेदनशीलता, कविता और वीरता का ऐसा संगम संभव होना बहुत कम होता है। अटल जी एक ऐसी ही महान विभूति थे। समाज और सुशासन को उनका योगदान, उनकी इस महानता का ही एक आयाम था, जिसका लाभ हमारे देशवासियों को मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा कि नैतिकता और पारदर्शिता सुशासन की आधारशिलाएं होती हैं। मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे देश का वर्तमान नेतृत्व अटल जी के आदर्शों को आगे बढ़ा रहा है।
चाहे जीएसटी हो, चाहे डीबीटी हो, चाहे जैम ट्रिनिटी हो, जन धन योजना हो, मुद्रा योजना हो, इन जैसे अनेक प्रयासों के द्वारा जन सामान्य के हित में सुशासन की संस्कृति को और अधिक व्यापक और सुदृढ़ बनाया जा रहा। यही अटल जी को देश की सरकार और देशवासियों की सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे पूरा विश्वास है कि अटल जी के दिखाए हुए सुशासन के मार्ग पर चलते हुए हम सभी देशवासी 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में सफल होंगे। यही अटल जी का सपना था। अंत में एक बार फिर मैं अटल जी के ही शब्दों में एक राष्ट्रीय संकल्प को दोहराना चाहूँगा। अटल जी की इन पंक्तियों में निहित संदेश मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं प्रायः उन पंक्तियों का उल्लेख भी करता रहता हूँ और वो पंक्तियाँ हैं, सभी सपने साकार करेंगे, सभी सपने साकार करेंगे, मिलकर रास्ता पार करेंगे। आइए इस संकल्प को दोहराएं और नई सदी को भारत की सदी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for your comprehensive address on the life and contribution of Shri Atal Bihari Vajpayee. I would also like to thank Shri Jayant Sinha ji as well as Admiral Shekhar Sinha ji for their remarks. Now, may I request Major General Dhruv Katoch, Director, India Foundation, to come and deliver his formal vote of thanks. Namaskar. As we come to the end of the 5th edition of the Atal Bihari Vajpayee Memorial Lecture, it is indeed a time to reflect on the values propagated by Atalji, who in the course of his public life strived continuously to strengthen India's democracy and who worked tirelessly for the social and economic uplift of the people of India. It remains for me to thank our very distinguished speaker, His Excellency Shri Ram Nath Kovind ji, the former President of India, who took time out from his very busy schedule to deliver the address which we have all just been privileged to hear. We are indeed very grateful to you, sir, for sharing your thoughts on one of the greatest icons of post-independence India and what his legacy means to the country. We thank you for your support and we look forward to your guidance in the years ahead. I also take this opportunity to thank Shri Jayant Sinha, Honorable Member of Parliament and Member Board of Governors India Foundation, for chairing the function. Thank you also for your contribution, for your continuous support to the Foundation in all our activities. I also thank Admiral Shekhar Sinha, who, as the Member Board of Trustees India Foundation, has always been a pillar of strength to us in all our activities. In the audience, we have a large contingent from the media. I thank each one of you for coming here this evening to cover this very important event. I also thank the administrative staff of the India Habitat Center for the support given to us in organizing this function in the Stein Auditorium. I would be failing in my duty if I did not thank my own team in India Foundation, who have worked tirelessly over many days for this function. Finally, I convey my thanks to each one of our distinguished audience, all our guests who have come here this evening to honor the memory of our late Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, Bharat Ratna, whose legacy will continue to motivate and inspire not just the present generation, but future generations of India as well. Tomorrow is Atalji's birth anniversary, which we now celebrate as Good Governance Day. On behalf of the Foundation, I convey my greetings to you on this auspicious occasion. Tomorrow is also Christmas, and 2023 is just a week away. On behalf of the Foundation, I wish you all a Merry Christmas and a very happy and prosperous 2023. With this, we come to the end of the program. May I request you all to rise for the National Anthem of India.
Ladies and gentlemen, kindly remain seated till our distinguished guest leaves the hall. Thank you. Sir. Thank you so much, sir. बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनते हुए. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. नमस्कार.